Good evening. It's my honor and privilege to welcome you to a BW dialogue, a BW Healthcare World dialogue on positivity. We call it the positive dialogue. आज हम सब आपके साथ शामिल हुए हैं और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हस्तियां शामिल हुई हैं जो पॉजिटिविटी का इजाफा कर रही हैं अपने कर्मों से। वो इस कठिन समय में लोगों की मदद कर रहे हैं अपने क्षेत्र में योगदान करके। Let me introduce each one of them one by one. These are people who really don't need an introduction, but let me start by introducing Dr. Kumar Vishwas. Again, he's somebody over the last 15 odd years. He's made a name for himself. He's been active for the last 3 decades, but especially in the last 15 years, he's made a name for himself. He's an activist, poet, author, motivational speaker. और पिछले कुछ महीनों में कुमार विश्वास जी ने 7,000 लोगों को मदद की है कोरोना से किसी न किसी तरह से उभरने में, चाहे उनके खाने पहुंचाने में हो, चाहे इनको मेडिकल किट्स पहुंचाने में हो, चाहे उनको ऑक्सीजन देने में हो। और इन्होंने he did an experiment and an initiative which is unique in rural India, where he guided the local village panchayats on how to set up kind of isolation centers where care could be taken with the resources that one has. So welcome Dr. Kumar Vishwas, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। साथ में जुड़ी हैं मिस शिवानी कश्यप। Again, she doesn't really need an introduction. Over the last 3 decades, she's been a voice that all of us have listened to and seen her performances and enjoyed them. So she's a singer, musician, and her song came out along with other leading artists where she's trying to spread positivity through her song. Welcome, Shivani. Again, Shivani, I can call her my friend the last 2.5 decades, and that gives away your age. I possibly know you from the day you were born. Okay? Right. Thank you so much. कुमार विश्वास जी, हम आपकी एज के बारे में बात नहीं करेंगे। आप 32 साल के हैं या 31 के भी हो सकते हैं, मेरी थोड़ी गलती हो सकती है। लेकिन then let me also bring in Mr. Brajesh Singh. He is the president of Arthur Little India. Again, he's been in the corporate sector, and he and his wife encountered Corona 4 weeks back. And in the last 3 weeks, they fought Corona and they came out as survivors. So we'll talk to him as an individual, as somebody who faced Corona. How did the support system around him help? How did the institutions help? And I would only look forward to positive inputs, positive stories. Last but not the least, we have Mr. Sudhir Mishra. Over the last 3 weeks, we kept hearing that the courts have taken up oxygen bench to look at the paucity of oxygen in Delhi. And then it became a world nationwide movement. So Mr. Sudhir Mishra is a partner in Trust Speaker. He does take up issues that impact environment, and in Corona times, he was instrumental in moving the petition that we now call petition before the oxygen bench. So welcome, Mr. Sudhir Mishra. Last but not the least, I have my colleague, Mr. Roel Amin, who's a senior editor with BW Business World and Exchange for Media. Roel, thank you for joining me in this conversation. So let me start with Mr. Kumar Vishwas and ask him. Kumar Vishwas जी, पिछले 8 वीक बहुत ही कठिन परिस्थितियां रही हैं, मनोबल भी कम रहा है और आप लगातार लोगों की मदद करते आए हैं। आप थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या किया और कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ। बहुत धन्यवाद आप सबको भी। और पूरी दुनिया के इतिहास में, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में जो मैनकाइंड ने संघर्ष किया है, मनुष्य ने जो संघर्ष किया है, ऐसे ही लोगों के बारे में बात हुई है, ऐसे ही लोग तारीख के पन्ने में जिंदा रहे हैं, ऐसे ही लोगों की मिसालें दी गई हैं जिन्होंने नेचर द्वारा खड़ी की गई एडवर्सिटी और ऑब्स्टेकल्स के सामने अपने पौरुष को, अपने पराक्रम को, अपने धैर्य को प्रूव किया है। पूरी दुनिया में जो भी हमारे धर्म के प्रणेता बचे हैं, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब हो, जितने भी लोगों ने दुनिया में, चाहे हमारे जो नए सामाजिकता के पैगंबर हैं जिन्होंने सामाजिकता को नया मायना दिया है, चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे गांधी हो, चाहे जर्जिस हो, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की। तो हम जब इन्हें पढ़ते हैं तो ये बेसिकली केवल थ्योरी नहीं होनी चाहिए, ये अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। और ये कहना बहुत सरल है, जिन लोगों ने जिंदगी में उतारा है उनमें से कुछ मेरे साथ आज यहाँ पर इस पैनल पे हैं। मैं अधिकांश में आप सबसे परिचित हूँ और सभी से मुलाकात है। शिवानी बहुत पुरानी को आर्टिस्ट हैं और सुधीर भाई का संघर्ष हम देखते हैं। ब्रजेश बड़े पद पर हैं लेकिन छोटे भाई जैसे हैं, तो सबके संघर्ष मैंने देखे हैं और मेरा भी एक थोड़ा बहुत संघर्ष है। जैसे कहते हैं ना कि ईमानदारी की पहचान जो है वो बेईमानी के अवसर के वक्त होती है।
और मैंने खुद से कई बार ये बात करके देखा कि जब बेईमानी के अवसर थे और बड़े बड़े थे कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं, और मुझे खुशी हुई कि मैं उन छोटी छोटी परीक्षाओं में खुद को जैसे कहते हैं ना, क्वार्टर फाइनल करता रहा, लीग निकालता रहा, सेमीफाइनल निकलता रहा। जिंदगी का फाइनल तो आखिरी सांस पे होता है। वो तो आखिरी सांस है कि जब आप मॉडेस्टी के साथ भगवान के सामने सरेंडर करते हैं और कहते हैं, और ऊपर वाला डिक्लेयर करता है कि ये मैच आपने जीता इस बार का या नहीं जीता, आप अच्छे रहे कि बुरे रहे। तो इस कोरोना काल में जितना अब तक जिंदगी में सीखा था 3 डिकेड के सोशल लाइफ में, उतना लगभग इसमें सीखा। उससे पहले बहुत ही जिसे कहते हैं वैरायटी से भरी हुई लाइफ रही। इंजीनियरिंग करने गए, वहां से भागे, पोइट बने, फिर पोइट्री को मेन स्ट्रीम बिजनेस में लेके आए। उससे पहले पोइट्री बिजनेस नहीं थी, मतलब ठीक था कि कवि हैं साहब, लेकिन ये नहीं था कि कवि जो है वो स्टारडम ले सकता है और वो गूगल हेडक्वार्टर्स बुलाया जा सकता है या वो इंटरनेशनल पोडियम पे उसको परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। उसके बाद एक्टिविज्म किया तो लोग कहते थे एक्टिविज्म नहीं होगा इस देश में, खत्म हो गया है। 47 के बाद और 77 के बाद अब एक्टिविज्म होगा नहीं। बट लकीली एक्टिविज्म भी अच्छा हुआ और लोग जागे। फिर लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल क्लैन बनाना, पार्टी बनाना, ये सब थोड़ा मुश्किल काम है, बट वो भी बनाया। फिर बोले लड़ना और जीतना मुश्किल काम है, तो वो भी सब भी करा। और फिर लोगों ने ये भी कहा कि राजनीति का लोभ छोड़ना बहुत मुश्किल है। एक बार जिसको सत्ता की चाशनी लग जाती है, आईएएस अफसर्स के सलाम और दरवाजे खुलने और विधायकों के पैर छूने, मंत्रियों के प्रणाम करने, तो उससे बाहर आना मुश्किल होता है। तो वो सब भी करके देखा। लेकिन कोरोना ने बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव दिया। पहली बार पता चला कि ताकत का मतलब आत्मा है, ताकत का मतलब पैसा नहीं है। मुझे पिछले 30 दिन में ऐसे बहुत सारे ताकतवर लोगों के रोते हुए फोन आए जिन्हें प्लाज्मा चाहिए। ऐसे बहुत सारे ताकतवर लोगों के मेरे पास सिफारिशें आई जिन्हें बेड चाहिए था, या जिन्हें अस्पताल में अच्छी केयर चाहिए थी, या जिन्हें रेमडेसिविर चाहिए थी, या जिन्हें टोसिजुलैम चाहिए थी, और उनको नहीं मिल रही थी। उनके पास पैसा भी था, उनके पास सत्ता भी थी, उनके पास सब कुछ था, बट नहीं मिल रहा था। तो फिर कैसे मिल रहा था? तो मैंने पाया कि वो आपकी आत्मा की ताकत पे मिल रहा था, आपके परसेप्शन पे मिल रहा। देश के किसी भी हॉस्पिटल के ओनर को अगर फोन किया और कहा, ग्वालियर के किसी अस्पताल को फोन किया और कहा कि कुमार विश्वास बोल रहा हूं, अच्छा वो जो पोइट्री करते हैं, जी आपके वीडियोस देखता हूं, बताइए। आपके हॉस्पिटल के बाहर एक महिला खड़ी हुई है, 8.5 महीने की प्रेग्नेंट है, कोविड हो गया है, हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, आपकी क्या लगती है? मेरी क्वेश्चन इतनी है, ट्विटर पे किसी ने भेजा है, किसी ने टैग किया है, तो उसने कहा ठीक है मैं बुलाता हूँ, और इलाज किया और केयर की और बाद में सूचना भी दी। तो इस कोविड के पीरियड में, और अभी चल रहा है, अभी तो जारी है, अभी तो संघर्ष चल ही रहा है, तो मैंने महसूस किया कि आपका परसेप्शन आपको जिताता है, आपकी आत्मा आपको जिताती है। मैं उन सब लोगों के लिए बहुत दुखी हूं जिनको मैं सहायता नहीं पहुंचा पाया। मुझे रातों को उन लोगों की चीखें सोने नहीं देती, उनके दर्द सोने नहीं देते, जिनको ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर दूंगा। मुझे पता नहीं था कि मैं कितना कर सकता हूं। मैं उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत आश्वस्त हूं जिनके लिए मैं हाथ बढ़ा पाया और थोड़ी बहुत उनके लिए कोशिश कर पाया। और इस कोविड काल से मैंने ये सीखा, हम लोग अक्सर कहते हैं कि सब पढ़ा यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, नेम पे। मेरा खुद का एक शेर है कि शोहरतें जिनकी वजह से दोस्त दुश्मन हो गए, शोहरतें जिनकी वजह से दोस्त दुश्मन हो गए, सब यही रह जाएंगी, मैं साथ क्या ले जाऊंगा। तो ऐसा मैंने शेर कह तो दिया था, लेकिन महसूस नहीं किया था। अब की बार पहली बार महसूस किया कि आदमी कितना छोटा है। जो हम बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब सजाते हैं, हम उसके सामने कितने छोटे हैं। और हर आपदा के बाद, हर एडवर्सिटी के बाद परीक्षा किस लिए की ली जाती है? परीक्षा इसलिए की ली जाती है, टेबल क्यों रटाया जाता है? मैं सोचता था बचपन में, टेबल क्यों रटा रहे हैं मेरे पिताजी, इससे क्या होगा कि मैं अगर 7 का टेबल रट लूंगा, 13 का टेबल रट लूंगा, इससे मेरी जिंदगी में क्या इजाफा होगा? इससे मेरी जिंदगी में इजाफा ये होगा कि अगर मैं बाजार में गया और किसी ने मुझे कहा ये 13 रुपए की चीज है, 13 रुपीज की चीज है, तो मुझे 5 लेनी है और कितना पैसा देना है, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर नहीं उठाना पड़ा, इसके लिए मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ी, चाहे मैं इंजीनियर बना नहीं बना। मैंने ये सीखा। तो एडवर्सिटी सिखाती है, हर परीक्षा एक सिखाती है। कोरोना की परीक्षा ने मुझे पर्सनली सिखाया कि आपका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, आपके बाद का जीवन महत्वपूर्ण है कि आप कैसे याद रखेंगे, अगर आप लोगों के काम आए हैं। एक उर्दू का एक शेर मैं आपको और सुनाता हूं कि मौत से बचने की एक तरकीब है। आप सोचेंगे कि बताइए साहब मौत से बचने की क्या तरकीब है? देखिए, मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों की सोच में जिंदा रहो। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कहें कि साहब वो थे तो बड़ा ठीक रहा, उनकी वजह से काम हो गया, उन्होंने ऑक्सीजन पहुंचा दी, उन्होंने दवाई पहुंचा दी। आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम लगभग 150 गांवों में अपना कोविड केयर सेंटर खोल चुके हैं।
जहां कोविड केयर किट पहुंचा चुके हैं। और आपको आश्चर्य होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं आई है, इसमें किसी प्रकार की कोई सरकार की सहायता नहीं है, इसमें किसी प्रकार के केवल दोस्तों का एक किट ही बनी हुई है और उससे हमने कोविड किट बनवाई और पहुंचा दी। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि जब सिस्टम फेल हो जाए, जब व्यवस्थाएं गायब हो जाएं, मौके से फरार हो जाएं, तो उस समय जो बचे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे एक दूसरे का हाथ पकड़ें। दुर्भाग्य से हमारे कबीले की जिनके पास सरदारी थी, जो आगे आगे चल रहे थे, पता चला कि वो आगे से कहीं निकल के भाग गए जब हम जंगल में घिरे, जब हम आग में घिरे, जब हम तूफान में घिरे। तो अब सरदारों को तो क्या पुकारना, अच्छा यही है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ें और इस मौके पर सिद्ध करें कि हम इंसान ऐसे ही नहीं कहलाए जाते। शुक्रिया कुमार विश्वास जी, आपके प्रयास। और मैं कहूंगा एक ना नियत, एक इंटेंट टू हेल्प इज एज गुड एज हेल्पिंग। या इंटेंट होता है वहाँ एक्शन भी हो जाता है। और निस्वार्थ, जब आप निस्वार्थ मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है कि आप औरों की मदद कर पाए। तो जो आपकी कोशिशें हैं वो दुगनी चौगनी हो जाती हैं और उनमें फल भी मिलता है। तो आपके सब प्रयासों ने बहुत लोगों की जान बचाई, बहुत लोगों को एक आशा दी और उस आशा ने शायद उनको रास्ते दिखा दिए। तो उसके लिए मैं आपको एक हार्टफेल्ट थैंक यू बोलना चाहूंगा। और अपनी बहुत धन्यवाद। आप ये करते रहिए और औरों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। आपने जैसे बोला कि यू डिड मेनी फर्स्ट इंक्लूडिंग मूविंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा थोड़ी कि आप पॉलिटिक्स टेम्परेरीली दूर गए हैं, फिर आएंगे पॉलिटिक्स में क्या? देखिए, पॉलिटिक्स क्या है, वो युग धर्म है, उसमें जाना आना नहीं होता है। हम उसमें गए थे तो वो भी डिजाइंड नहीं था, वो भी तय नहीं था। वो जो आदमी है, हो सकता है उसके दिमाग में तय था, उसके दिमाग में शायद ये तय था कि ये सब टूल है मेरे, मैंने ऐसे इस्तेमाल कर लूंगा, बट मेरे में नहीं था, मुझे नहीं पता था। तो पॉलिटिक्स कभी भी आदमी के मन से जाती नहीं है और उसका युग धर्म होता है, वो टाइम की डिमांड होती है। ईश्वर ना करे कल कोई ऐसा दिन आए कि इस देश के नेता फिर हमको ऐसा शर्मसार करें कि कंट्री हमारी तरफ देखे और हमसे कहे कि आप लीड करिए। आज भी मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे मेरा लगभग 25 मिलियन का मेरा फॉलोअर बेस है। तो मैं अक्सर देखता हूँ, कभी कभी जब स्क्रॉल करता हूँ तो उसमें हजारों हजार लाखों लाख कमेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि साहब आप आगे आइए, लीड करिए। लेकिन लीडर का मतलब केवल पॉलिटिकल लीडर नहीं होता। अगर आप सोशली लीड कर रहे हैं, अगर आज बिजनेस वर्ल्ड लीड कर रहा है, अगर आपका जो आप अवार्ड देते हैं मीडिया ग्रुप्स को, अगर वो एक लीडर अवार्ड है जो सबसे बड़ा लीड करता है, अपने प्रूव करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए पॉलिटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर कोई ऐसा अवसर आ पड़ा तो जरूर। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अब जसबीर जस्सी जी भी जुड़ गए हैं अगेन। जसबीर जस्सी जी पिछले 30 साल से ऐसे ही दिखते हैं। जसबीर जस्सी हमारे सुपरस्टार हैं म्यूजिक डोमेन के, और मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा और उनसे भी पूछना चाहूंगा कि उनका भी एक नया सिंगल आया है और कैसे वो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बट एट दिस पॉइंट लेट मी फर्स्ट गेट इन शिवानी कश्यप। शिवानी, again, people are very depressed, they're very anxious, they're very afraid of the future, they're very uncertain. तो ऐसे में आर्ट्स की क्या भूमिका है, आर्टिस्ट की क्या भूमिका है? क्योंकि we find solace in कविताओं में, गानों में, और कई बार जब एक रोल मॉडल्स कुमार विश्वास जी से, जसबीर जस्सी जैसे, आप जैसे जो पब्लिक फिगर है, वो कुछ बोलते हैं तो वो कई बार एक आशा की किरण होती है और एक डोर होती है जिससे आदमी लटक जाता है। तो गिव अस अ सेंस ऑफ व्हाट हैव यू बीन डूइंग टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू पीपल्स लाइफ बियॉन्ड म्यूजिक, एंड हाउ कैन म्यूजिक बी द यूनिफायर एंड अ beacon of hope in this very turbulent time? Thank you, Dr. Batra, for this lovely question. In fact, I would just like to, at the outset, say that music is a divine gift. It's therapeutic. It's healing. It stimulates, and anybody who is not just a musician but also has the power of appreciating music is blessed. So let's integrate music into our lives, daily lives, and make it a very integral part of our lives, because it truly will help us elevate our moods. I'd like to quote Beethoven at this point. Beethoven had once said that music is a higher revelation than any wisdom or philosophy. It is the electrical soil within which a spirit lives, thinks, and invents. And of course, Shakespeare had said, if music be the food of love, play on. And I just want to say that music truly elevates
everyone's moods, and आजकल जो म्यूजिक के थ्रू मैसेजेस हम दे सकते हैं, they are very effective, and music has those frequencies. जब आप डिप्रेस्ड होते हो या इफ यूर इन अ लो मूड, और आजकल मायूसी का आलम है ही, तो म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुनने से अपने दिन की शुरुआत मंत्रास और चांटिंग से करें, तो दैट जस्ट सेट्स द टोन ऑफ द डे. म्यूजिक से आपका एक बहुत पावरफुल ऑरा क्रिएट हो सकता है. महामृत्युंजय मंत्र जो है वो अगर आप चांट भी करें या सुनते भी रहें पूरे दिन, आई थिंक इट्स सो पावरफुल दैट it can heal you, it can heal you, it can protect you. So music has such infinite powers, and I'm sure Jasbir ji will agree with me कि जब आप रियाज करने बैठते हैं, जसबीर जी, जब आप म्यूजिक क्रिएट करने बैठते हैं, आपको तो लगता ही होगा कि बस, और you are totally in one with yourself, one with yourself. It transcends all barriers. So I would just say that in these times, especially in these tough times, अगर हम लोग सबके सब जो आर्टिस्ट ना भी हों, सबके सब म्यूजिक को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर लें और उसको एक बहुत अहम हिस्सा बना लें. मतलब दिन की शुरुआत ही आप चांट्स और मंत्रास और अच्छे सूदिंग म्यूजिक के साथ करें, मेडिटेशन करें थ्रू सम ग्रेट म्यूजिक. It would be a huge help. So, well, I have been trying to, give many talks about this, about how healing, the healing powers of music. And मुझे हाल ही में एक बहुत ही अच्छी opportunity मिली. It's an initiative of the government of India and the minority ministry. They were doing a song to as a tribute towards the Corona warriors. And I said yes immediately. Kailash Kher ji, me and Sudesh Bhosle, three of us have sung this song. It's been written very beautifully by Alok Srivastav ji and composed by him. तो ये इस गाने में एक अलग ही मजा आया, एक अलग ही उत्सुकता थी मुझे, बिकॉज एक तो बिल्कुल घर के स्टूडियो के सेटअप से मैंने गा के भेजा गाना, एंड देन शूट भी अपने घर के गार्डन में ही करी. तो it's in these circumstances, work from home circumstances, that we are working, yet we are trying to not stop creation, not stop our creation and production of our music. और music इस वक्त बहुत अहम है. I mean हमेशा ही था, but अभी जब आप डिफरेंट किस्म का म्यूजिक सुनते हैं, डिफरेंट जॉनर्स का म्यूजिक सुनते हैं, इट रियली अपलिफ्ट्स योर मूड. इट इज ये तूफानों से कैसे हम जूझे, ये थोड़ा गा के बताइए तूफानों से. जी बिल्कुल. तूफानों से, सैलाबों से, संकट के हर कंटालों से, इस जग में मुसीबत कौन टिकी है, दृढ़ प्रतिज्ञा वालों से, दम से जीवन, खम से हिम्मत, दम से जीवन, खम से हिम्मत, प्रण है मानवता की खिदमत, धीम धीम ताना, धीम धीम ताना, ताना दे रे ना. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. ये तूफान, बहुत तूफान आए हैं पिछले एक हफ्ते में, कोरोना के तूफान और वैसे भी. जस्सी जी, आप अपने समय में लोगों की मदद करते रहे, मुझे मालूम है पर्सनल लाइफ में कैसे आप लोगों की मदद करते हैं, बट ये आपका रिसेंटली 2 दिन पहले एक नया गाना और उसका वीडियो आया, दिल मांग दी. एंड अगेन एज आई सेड, म्यूजिक कैन हेल्प यू फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर. इट कैन गिव यू होप, because really it changes your mood, and once it changes your mood you can see the possibilities. तो जसबीर जी, पहले तो आप बताइए कि आपने इस कठिन दौर में क्या किया, और फिर हम आप चाहेंगे आप दिल मांग दी थोड़ा सा हमारे लिए गा पाएं. जी, एक्चुअली क्या है, जो कठिन दौर की बात है, मैं तो म्यूजिक ही बनाता रहा हूँ, और थोड़ी बहुत मैं कभी क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत छूटी हुई थी, पहले ज्यादा पोएट्री साहित्य को पढ़ते थे, मगर ये जब थोड़े वेले हो गए हैं, थोड़ा फ्री हो गए हैं हम लोग, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया. अच्छे लोगों के साथ भी बैठा हूँ मैं, उनके साथ बातचीत भी करता रहता था. कठिन समय तो है ही सब दुनिया के ऊपर. जो लोग जा रहे हैं वो चलो, वो तो इस दुनिया से जा रहे हैं, पर जो लोग रह रहे हैं, जिनके मन में डर है, जिनका माइंड जो है हर टाइम पे यही सोचता रहता है कि जिनके कुछ ना कुछ क्या खराब हो रहा है, जहाँ जिनके घर से कोई ना कोई चला जाता है, उनको डर रहता है. जो लोग सुनते हैं उनको बहुत डर रहता है. तो उससे निकलने के लिए म्यूजिक तो बेस्ट थेरेपी है. म्यूजिक जो है बहुत अच्छी थेरेपी है. मैं
हम लोग सोच रहे थे कि ये गाना अभी ना रिलीज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कोविड हो रहा था, बहुत सारी शमशान घाट की हम लोग न्यूज देख रहे थे। तो मुझे टी सीरीज ने बोला कि 20 तारीख को रिलीज करें। तो फिर मैंने सोचा हो सकता है हेल्प होए लोगों को एक माइंड तो डाइवर्शन होती है ना, माइंड जब डाइवर्ट होता है तो आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत सारी चीजें मैं हमेशा सोचता हूँ कि बहुत सारी टेंशन होती है जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं। कई बार स्टेज के जाने से पहले तक बहुत ज्यादा फोन आ रहे होते हैं कि ये हो गया जी, ये प्रॉब्लम हो रही है घर में, ये हो गया वो हो गया। फिर भी जब आप स्टेज पे चले जाते हो तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, आप बिल्कुल ट्रांस में चले जाते हो। तो म्यूजिक जो है आपके माइंड को डाइवर्ट करता है। तो हमने गाना रिलीज किया, उसका मुझे कमर्शियली ज्यादा फायदा ये हो गया कि वो गाना थोड़ा मतलब लोगों ने पसंद कर लिया, हिट कर लिया। कुछ आ भी नहीं रहा था, इधर उधर भी कुछ नहीं था, मतलब पंजाबी कहते हैं अन्य काना राजा जिदा हो गया। बहुत अच्छा है गाना। पर फिर भी चलो किसी भी तरीके से वो गाना थोड़ा लोगों को पसंद आया। मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको ट्यून भी अच्छी लगेगी उसकी। पहले जैसे कि आप कुड़ियों के बारे में ही गाने क्यों गाते हैं, मुझे एक बात बताओ। क्या कि कुड़ियों के लिए गाने गाऊंगा अभी तो मैं ठीक लगता हूँ। समझ नहीं आया कि आप वो एक सुपर हिट गाना वो कुड़ियों पे था, अब गाना फिर कुड़ियों पे। अब कुड़ियों पे गाना कब तक गाते रहेंगे आप? जितना टाइम मेरे गाने हिट होते रहेंगे। ठीक है, चलिए सुनाइए। मखौल कर रहे थे ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। I was joking with you, but नहीं, पर ठीक है, वो अच्छी बात है। मैं आपको सुनाता हूँ। दाना ताना तारा मुंदियां विच नग जड़वाए की दे दस नाम तू, मुंदियां विच नग जड़वाए की दे दस नाम तू, जस्सी नू मुफ्त च कीता बदनाम तू, आंदी जावे जिथे जिथे लंघदी, दिल मंगदी ओ कुड़ी दिल मंगदी ओ कुड़ी दिल मंगदी ओ कुड़ी दिल मंगदी, दिल मंगदी ओ कुड़ी दिल मंगदी ओ कुड़ी दिल मंगदी ओ कुड़ी दिल मंगदी, सखियां नाल हस हस हसदी, सखियां नाल हस हस गल्लां, मित्रा लई कूरियां, अल्लाह कद खत्म करेगा, अल्लाह कद खत्म करेगा लम्बियां ए दूरियां। वाह, है ना? वेरी गुड। आई थिंक नो वंडर इट्स इट। और एक और मेरे को मुझे पता है एक्चुअली कुमार बाजी, एक्चुअली ये ना शौकत अली साहब का स्टाइल है। शौकत अली साहब उनके अभी थोड़े दिन पहले, मेरी जान, यू आर स्टार यार। क्या जस्सी का जवाब। थैंक यू क्या बात है, क्या बात है। जस्सी जी, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। मैं सुधीर मिश्रा जी और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो स्टूडियो में अच्छा गाते हैं, बहुत आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो रियाज में अच्छा गाते हैं, बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो गाते भी बहुत अच्छा है और परफॉर्मर भी बहुत अच्छा है। तो चूंकि हमने और जस्सी बाजी ने कई शो टीवी के और वैसे साथ किए हैं, इज ए वंडरफुल परफॉर्मर। जैसे कहते हैं ना, मंच को आग लगा देने वाला बंदा, दैट इज जस्सी। थैंक यू सर, आप भी बहुत अच्छे परफॉर्मर हो। आपसे भी सीखते हैं हम लोग, क्योंकि आप जब वो जैसे बांध के रखते हो लोगों को, वो भी एक इंस्पिरेशन। लव यू भाई, लव यू। थैंक यू। एंड मुझे पता है कि जस्सी जी आपका ईश्वर में बहुत विश्वास है और सूफियाना चीजें भी आप गाते हैं। तो मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा, और क्योंकि हम ईश्वर से प्रार्थना कर पाएंगे हम सबकी जानो माल को हम हिफाजत करके रख पाए। और लेट मी ब्रिंग इन मिस्टर सुधीर मिश्रा। Mr. Mishra, you heard these three gentlemen, these very public figures, doing what they can do to contribute through your activism on a pro bono basis. You approached the Delhi High Court about the oxygen shortage in Delhi, and give us a sense of how did this come about, and what is the impact this has had. Thank you, Dr. Batra. After listening to Dr. Kumar Vishwas and Jassi and Shibani ji, it's not possible for me to take you to a very serious dialogue, but I can only tell you that what bothered me almost a month back, when for the first time one of the major hospital client of mine came to me and they said that we want to prepare the consent letter for the patients because we don't have oxygen for our hospital. And I said, how many patients we are talking about? We were talking about close to 100 patients. And he wanted a consent form because he thought that if he will not be able to provide
oxygen on time, these patients will, they have to be told that they have to die now. So that was the situation number one. The situation number two was when doctors, journalists, lawyers, and magistrates of all kinds started calling me for beds in hospitals in Delhi. And Dr. Vishwas has talked about it. If you represent hospital, people think you'll be able to get oxygen, you'll be able to get the medicine, you'll be able to get something. See, what has primarily happened in the last 45 days, we as a nation have been demoralized. We as a nation have been compromised. Yes. The issue is not whether we are a third world country anymore. The issue is, are we going to be relegated to some fourth world country club also, which is what is being talked about in the entire world. So you're starting this kind of dialogue and this kind of talk where we are talking positivity is something which motivates us. Because when you see young man, 30-year-old, 35-year-old, 38-year-old dying in hospital, not because of they are not being treated for COVID, because they couldn't get oxygen, you don't know what to do. And then when you tell everybody, so there is no political reason for it. There is no political dialogue here. We had the same question for one particular party which was ruling at the center, one particular party which was ruling at a state, that why the character of Delhi is like this, Dr. Batra. Why it is like a Kabili capital, where there are different political parties which are ruling different administrative units of Delhi. And that led to this kind of confrontation. When you see the High Court, we called it oxygen bench, that High Court is asking you to create a WhatsApp group after 15-20 days. A WhatsApp group, Babus can't create without our intervention. You need a petition to create WhatsApp groups. And WhatsApp groups to be created so that they can work together. So monitor. I think the message has been missed. The biggest problem is the confidence crisis. I'm not going to favor even those people who are taking picture of our cremation gowns and selling it for obscene amount to international publication, but at the same time, denying any kind of figure, denying any kind of data is not going to take us to a comfortable space at all. Because we're being questioned by the entire world now. And we are being seen as a potential problem as a society. Because if we are not trusted as a society, that's a bigger problem if we are not trusted as a country. Thank you so much for doing what you did, and you're right. We have to be realistic, and that's how we find solutions. Mr. Singh, let me bring you in. Again, you were in the media, you were in an infrastructure company, now you're with a consulting company, global consulting company. Tell us your experience as a survivor and the thoughts that made you survive, the positivity. And I'm sure at some stage you were also very terrified and worried because both you and your wife had corona. So, Mr. Brajesh Singh, give us a little bit of positivity and tips on how to survive corona. Thank you, Anurag-ji. I think this last 10 days, 15 days for me have been a completely transformative in terms of my thought process, my gratitude, and the way I look at life now. Yes, it was a challenging time, but these 10-15 days have made me realize how rich I am and how privileged I am to have friends and brothers like you, Dr. Kumar Vishwas and Sudhirji. I think in a time when privileged people are not getting hospitals, bed, oxygen, I think I was fortunate enough to get the access of all this. When I was in hospital and I was rushed to emergency, the person sleeping next to me died. I took a turn towards my left side. The left person's side also died. It was very horrific for me. And I think I can't explain this experience in words. What actually has touched me, the selflessness of people in the hospital, the way they helped, the way they kept me motivated. And what I realized, actually, you are only powerful when you can help others. If you can't help others, you are not powerful. Wonderful. It's time then we all need to look at, review our life, look at the purpose that we've been born for, be more selfless, give it back to society. I'm very, very happy and thrilled, touched by the gesture of Dr. Kumar Vishwas and Sudhirji,
one is fighting for oxygen, one is actually set a vision that if the villages fail, if the pandemic spreads in the villages, the cities will die faster. It is very, very important for us, for each of us, no matter how influential, how big or small we are, that we should rise to the occasion, come together and make conscious efforts in whatever capacity we can. If as a corporate we can come together, we need to come together. If as an individual or as a society or as a couple of friends, I think it's a time which calls for these kind of measures, these kind of initiatives. Last but not the least, Anurag ji, I think I'm more positive than I was. I'm more optimistic than I was, and I'm more prepared to help people, and I look forward life in a different way now. That's from my side today. Thank you so much, Brajesh ji. As they say, it is like a rebirth. It's a second chance. It is a second inning, and we have to be grateful for living every day and do our best. And clearly, आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आप what you're experiencing is possibly in this life and your earlier life. But let me bring in my senior editorial colleague, Mr. Ruhail Amin, into the conversation. Ruhail, why don't you take the next set of questions with a very eminent panel, and we're discussing positivity. So Ruhail is one of the most positive people that works with me. Right now he's in Kashmir. Thank you so much. Because he went to Kashmir to celebrate Eid with his mom, because last year on his birthday on 27th October, he lost his father. So it was his first Eid without his father. So he went to Kashmir to celebrate it with his mother. So you can see the beautiful, woodwork behind him. So because he's in Srinagar, that's why you can enjoy it. So Ruhail, all yours. Thank you so much. I was listening to the points raised and very valid. I think the gloom and doom around, we need to bring in positivity. Of course, I mean, you cannot lose hope, and this is our attempt today. I want to come to you, Jassi ji, first with you. I think we all need that element and inspiration to stay positive. Even when you compose music, how do you train yourself to be positive amidst the gloom and doom that you see? What is the way to do it what would you suggest? What is the way that we should adopt and do it? I think म्यूजिक की तरफ ही आप जाते हो ना, जब आपका रास्ता ही म्यूजिक की तरफ जाता है तो वो ही एक पॉजिटिविटी होती है। म्यूजिक कमाल की चीज है। म्यूजिक जो है ना, मैं भी किसी को बोल रहा था एक इंटरव्यू में, वो कह रहा था कि म्यूजिक आपके लिए क्या है। मैं उसको बोल ही रहा था कि म्यूजिक यार आपको नचा भी देता है, आपको रुला भी देता है, आपको हंसा भी देता है, आपकी नर्व्स को रिलैक्स भी कर देता है। मतलब हर तरह का फील जो है म्यूजिक में है। तो आई थिंक उस टाइम पे बस वो ट्रांसमिट जाने वाली बात होती है, वो पॉजिटिविटी होती है। जब हम लोग म्यूजिक बनाते हैं, जब अगर मैं याद करूं कि कुमार भाजी, मैं आपको जरूर ये बात सुनाना चाहता हूँ। जब दिल लगी कुड़ी गुजराती मेरा आना था, तो मुझे याद है कि मैं अपने जलंधर से, हम तीन दोस्त, बीरा, मैं, एक रंजन है हमारा दोस्त, हम गाने इकट्ठे करने गए थे। तो गांव में ऐसे, जैसे कुमार पाजी हैं, हमें पता कि फगवाड़ा में कुमार पाजी है, हमको उनके पास गए, कुमार विश्वास पाजी गाना है, मुझे कोई गाने दे दो। आपने 15 गाने दिए। उस टाइम मोबाइल फोन का जमाना तो था ही नहीं। तो आपने बोला कि यार मेरा एक दोस्त है इधर गांव में है, वो भी अच्छा लिखता है, उसके पास जाओ। फिर उसके पास गए, उसने 15 गाने दिए, फिर 15 गाने उसने दिए, उसने किसी और का। ऐसे करते करते हमने 19 दिन पंजाब का चक्कर लगाया, पूरे पंजाब का। तो मैं मतलब ऑलमोस्ट 5000 गाने इकट्ठे करके आया। पूरा दिन हम घूमते रहते थे, पूरा दिन। जिसके घर में रात पड़ जाती थी, शायर के घर में, आप देखो कितने शायरों को मैं मिला हूंगा उस टाइम, गांव में जाके। तो मतलब ये एक रास्ता ही ऐसा है कि जब आप चल पड़ते हो तो आप इंडल्ज हो जाते हो, आप इन्वॉल्व होते हो। फिर उसमें से एक दिल लगी बन गया, फिर एक कुड़ी बन गया, फिर एक चैनल जवानी में पैर पे गया। तो मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव वाला ही फील है सर। ये जैसे भगवान के लिए एक गाना गाइए,
I remember in August last year, आपने मुझे एक मॉर्निंग में एक भजन भेजा था, आप you were invoking the God. Why don't you sing that? जी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं मतलब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं सिर्फ ढक सकूं, पर कोई बात नहीं। मैं आपको बाबा नानक का जो है पवन गुरु पानी पिता माता धरती, जो इन्वायरमेंट के ऊपर बाबा नानक ने इतना बड़ा लिखा है, तो वो सुनाता हूँ। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया, खेले सगल जगत। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि पवन गुरु, पवन जो है गुरु है, पानी जो है वो पिता है। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, जो धरती माता है वो महान है। दिवस रात, दिन और रात, दोई दाई दाया, जो दाई होती है ना पंजाबी में बोलते हैं दाई, नर्स जो होती है। दिवस रात दोई दाई दाया, डॉक्टर और नर्स हैं। खेल है सगल जगत, सारा जगत जो है उसमें खेल रहा है। तो कहते पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया, खेल सगल जगत। चंगियां बुरियां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी त्याया जिनी नाम त्याया, गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाह वाह। नवंबर में आपने मुझे एक अर्ली मॉर्निंग में गाना भेजा था, 30 नवंबर को, नानक नानक होए होया। अच्छा, नानक नानक होए होता है, सब कुछ नूर हो। एक हमारे कविंदर चांद जी हैं, कुमार पाजी पंजाबी के, तो उन्होंने गुरु नानक के ऊपर एक गाना लिखा, बड़ा डिफरेंट था। सब कुछ नूरो नूरी होया, रिश्मा विच पिरोया होया। सब कुछ नूरो नूरी होया, रिश्मा विच परोया होया। इस धरती दा जर्रा जर्रा, नानक नानक होया होया। इस धरती दा जर्रा जर्रा, नानक नानक होया होया। नानक कोई नाम नहीं है, नानक कोई ताम नहीं है, नानक है हर कण दे विच विच, नानक है हर कण दे विच विच, हर कण विच समोया होया। इस धरती दा जर्रा जर्रा, नानक नानक होया हो। बड़ा खूबसूरत लिखा था उन्होंने। देखिए, नानक कोई नाम नहीं। जैसी जी शुक्रिया, मतलब आपने ब्यूटीफुल रियली। मैं चाहता हूँ कुमार पाजी अभी मूड में मैं कुछ तरह आपसे इसलिए गवा रहा हूँ ताकि मैं कुमार पाजी से और फिर शिवानी जी से कह पाऊँ। तो कुमार और सुधीर जी भी बहुत अच्छा गाते हैं वैसे। अरे वाह। तो लेकिन कुमार पाजी कोई, बट कुमार जी कुमार पाजी अपनी कोई जो चीज है ना,
इन सब के हिसाब की शायरी नहीं सुनानी, मेरे हिसाब की शायरी सुनानी। Only for शायरी Jassi नहीं Baji. सुनानी। ठीक है, कोई बात नहीं। हम भी कोशिश करेंगे कि हम उसका लुत्फ लें, बट डॉक्टर हाँ। कुमार विश्वास, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप भी कुछ ऐसा पेश करिए कि दिल गदगद हो जाए। अब ये दोनों जो है ये तानसेन है, हम तो कानसेन है। आप बहुत कमाल के बंदे हो। मैंने आपकी कुछ कुछ चीजें सुनी हुई हैं जो आम लोगों ने नहीं सुनी हुई, पर वो कमाल है, बहुत कमाल है। और जैसा जस्सी भाई ने कहा है उनके हिसाब से सुना देता हूँ, क्योंकि पंजाब वालों की दिल्ली कम सुन रही है तो हम तो सुन लें। यस यस यस। Nice one. तो मैं तो 4 लाइन पहले सुनाता हूँ कि सबसे पहले तो कि मैं जब पढ़ाता था पहली बार क्लास में, तो जनरली जैसे राजस्थान में नौकरी थी तो जो सरदार बच्चे थे वो माइनॉरिटी में थे, जो पग बांधने वाले बच्चे थे, तो वो एक क्लास में 1-2 होता था। तो डेफिनेटली माइनॉरिटी का जो बच्चा होता है इस तरह का, उसके साथ सब चहल कूद करते हैं, वो थोड़ा जॉली गुड फेलो भी होता है, हंसी मजाक करना, वो खुद भी बंदा ऐसा ही होता है। पंजाब की जैसी आदत है कि खुद अपने ऊपर मजाक करना, हाँ ये करना। तो मुझसे क्लास में एक दिन एक लड़के ने पूछ लिया कि सब हर शब्द का अर्थ होता ही है गुरुजी? तो मैंने कहा हाँ, गुरुजी बोलते थे उधर गंगानगर में। मैंने कहा बेटा हर शब्द का अर्थ होता है। तो गुरुजी सरदार का क्या अर्थ होता है? मैंने कहा यार सरदार तो, बोले नहीं ऐसा लगता है ना, डाकुओं का सरदार था एक, कबीले का सरदार था एक, और एक ये भी सरदार है। तो फिर सरदार का क्या मतलब हुआ, फिर सरदार क्या हुआ? तो मैंने उसको बोला कि भाई देखिए, जो लफ्ज है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है सर, हेड जिसे कहते हैं, और एक है दार जिसे फांसी कहते हैं। तो मैंने उसको ये 2 शब्द बताए, फिर मुझे लगा इसे ठीक से समझ में नहीं आएगी, तो अगले दिन मैं 4 लाइन लिख के ले गया। फिर मैंने उसे वो सुनाई, वो सुनाता हूँ मैं पूरे पंजाब के नाम, जैसा जस्सी ने कहा तो सुना देता हूँ, भाई हैं वो हमारे जी। कि जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है, जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे वही इकरार होता है, सनम को ही खुदा समझे वही इकरार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है, वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। क्या बात, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा गाते हो। श्रीनगर वाले जो हमारे मित्र बैठे हैं उनके पास कुछ सवाल होंगे जरूर हमारे लिए, उनसे बात करते हैं। आपके लिए एक सवाल है। आपने इनिशियली बोला कि you said sorry to people you couldn't help, you know, बाकी इतने सारे रिक्वेस्ट थे। हमने क्या देखा इस कोरोना काल में कि इतने सारे kindness which we thought is not around, it is overflowing all over. I think we underestimated the humane side in us. इस बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, it was not my duty to estimate the gruesomeness of the situation. It was not my work. Shivani's work, Jassi bhai's work, Brajesh's work and my work was to do my duty and to pay tax to the system. मेरा काम था एक ओबिडेंट नागरिक की तरह मैं अपना काम करूं, हम लोग अपने शोज करें, हम म्यूजिक बनाएं, हम कविताएं लिखें, ब्रजेश अपनी कंपनी चलाए, आप लोग अपना बिजनेस वर्ड चलाएं, आप अवार्ड शोज करें, और हम जो कमाई करें उसमें से एक स्पेसिफिक टैक्स का हिस्सा गवर्नमेंट को दें। तो जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, हेल्थ का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, एजुकेशन का, और इस भरोसे पर हम लोगों पर बैठे हुए थे। बट मैं बताऊं, ह्यूमैनिटी फेल नहीं हुई है, हिंदुस्तान की ह्यूमैनिटी फेल नहीं हुई है। 4 लोगों ने कालाबाजारी की, रेमडेसिविर की, वो इंडिया नहीं है। 4 लोगों ने ऑक्सीजन महंगी बेची, वो इंडिया नहीं है। 5 अस्पतालों ने बिल ज्यादा बनाया, वो इंडिया नहीं है। इंडिया वो लाखों लाख लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को खाना पहुंचाया, जो एक दूसरे की मदद करके आए, जो लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार करके आए।
वो मुसलमानों के बेटे जो दाह संस्कार करके आए अपने मोहल्ले की औरतों का, आदमियों का, हिंदुओं का, वो हिंदुओं के बच्चे जो अपने चचाओं के और जो मुसलमान जो वफात फरमा गए थे उनको कब्र में सुपुर्द करके आए खाक में, उसका नाम इंडिया है। हम सब लोग इंडिया हैं जो आज इस पैनल में बैठे हैं। मुझसे किसी पैनल में एक इंटरव्यू में एक पत्रकार कह रहे थे कि बहुत अच्छा आपने काम किया, यही हमारी ड्यूटी है कि हम सोसाइटी में। नो सर, दिस इज नॉट माई ड्यूटी। आपने मुझसे टैक्स लिया और टैक्स भी खूब सारा लिया, छोटा मोटा नहीं लिया आपने मुझसे। मैंने पोइट्री लिखी, इस पे आपने 18% जीएसटी लिया। मैंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया तो आपने मुझसे 33% पैसा लिया। फिर जो बचा हुआ पैसा था उससे मैंने मोबाइल खरीदा तो आपने उस पर भी टैक्स लिया। मैं एक 5 स्टार होटल में खाना खाने गया तो भी आपने मुझसे लग्जरी टैक्स लिया। आपने टैक्स के ऊपर टैक्स लिया। मैं ये सोच के बैठा था कि मुझे आपसे वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद नहीं थी। सुधीर भाई कह रहे थे कि हम प्रोग्रेस कंट्री नहीं है। मुझे आपसे इतनी उम्मीद थी कि मेरे औलादों को, मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को, और मुझे अगर हवा की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की तो वो हुजूर आप दे देंगे। और हम कितने बुरे हालत में थे और बुरे हालत में हैं कि हम अपनी जनरेशंस को, एक बात इस पूरे पैनल के लोग खुशनुमा माहौल में मुझे माफ करेंगे इस कड़वाहट को घोलने के लिए, हम सब लोग पढ़ते हैं। हम लोग तो, मुझे आप लोगों का तो पता नहीं पर जस्सी भाई का पता है जो कि मेरे दोस्त हैं। हम सब लोग बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, हम 5 भाई बहन, 2 तारीख को सैलरी आती थी तो सबके फीस जाती थी। बड़ा भाई आईटी में पढ़ता था, उसके पैसे जाते थे। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो मेरे पैसे अलग जाते थे। और हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमने जो ताकतें कमाई अपनी टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, या ब्रजेश ने एक्सेलराई से किया और उसके बाद बड़े बड़े ग्रुप्स ऐड किए और आज एक कंपनी का प्रेसिडेंट है, इसलिए कमाई कि कभी भगवान ना करे हमारे घर वालों को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके काम आएंगे। इस कोरोना के बाद लाखों लाख हिंदुस्तानियों के मन में ये गिल्ट इस सोसाइटी ने छोड़ी है, सिस्टम ने छोड़ी है कि मैं अपने पिता को नहीं बचा सका, मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सका, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका। आप उस आदमी की गिल्ट देखिए ना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। कुमार भाई पैसे की कोई दिक्कत नहीं, कुमार भाई पैसे की कोई रेमडेसिविर दिला दीजिए। मैंने देखे हैं कि लोग बाग 10-10 लाख रुपए लेके टोसी जो जुलैम के लिए लाइन में लगे हुए थे और मेरे पास फोन आए। और उनमें से एक व्यक्ति, जो आज मैं गांव में काम कर रहा हूं, अभी मैंने देखा कि 20 गांवों के लिए कोविड केयर किट एक आदमी ने नोएडा से कहा कि मैं भेजूंगा। मैंने उनसे कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, हो जाएगा। बोले नहीं साहब, आपने जिस वक्त मेरे बेटे को दवा दिलाई थी, मैं उस दवा के लिए 10 लाख रुपए लेके जेब में घूम रहा था। मेरी गाड़ी की डिक्की में 10 लाख रुपए थे और आपने मुझसे कहा नहीं, उस जगह मैंने मेडिकल स्टोर पे बात कर ली सप्लायर से, जितने किए उतने में मिलेगी, जाके ले आई और मेरा बेटा बच गया, घर आ गया। तो हम फेल नहीं हुए हैं, ह्यूमैनिटी फेल नहीं हुई है, हमारा सिस्टम फेल हुआ है। और ये क्वेश्चंस इस देश में होने चाहिए। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है हेल्थ का दिल्ली में या यूपी में। ये सब बीमार हुए दिल्ली वाले, इनके मंत्री बीमार हुए, इनकी बीवियां बीमार हुई, इनके बच्चे बीमार हुए, ईश्वर उन्हें आयु दे। ये सब जाके मेदांता में लेटे। 75 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बना पाई हिंदुस्तान की जनता। इतने सारे सिस्टम के लोग, इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं डीपीएस में, एमईटी में, और ये कहते हैं हमने स्कूल अच्छे बना लिए। इनके बच्चे बीमार होते हैं, जाते हैं मेदांता में। तो सर, मैं तो अल्टीमेटली, आपने पॉजिटिविटी के लिए वक्त हम लोगों का इकट्ठा किया है कि हम पॉजिटिव बात करें, बट मैंने तो इस दौरान ये सीखा है कि मुझे लिटरेचर में कितना काम करना है पता नहीं। मैं इन दिनों कुछ फिल्में लिख रहा हूँ, कुछ वेब सीरीज लिख रहा हूँ, लिखता रहूंगा क्योंकि रोजी रोटी इससे चलती है। फिल्म लिखते हैं तो पैसे आते हैं, हम सब लोग शो बिजनेस के लोग हैं। फिल्में नहीं करेंगे या शो नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, घर नहीं चलेगा। बट ये सोचा है कि अब इसके तुरंत बाद एक 100-200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलूंगा, और पहला अच्छे से चल गया तो बाकी जगह भी खोलूंगा। इसके लिए गांव-गांव जाके चौराहे पे प्रोग्राम करूंगा, लोगों से कहूंगा कभी आज तक तो आप मुझे देते थे एक रात गाना गाने के, अब आप मेरे लिए वेंटिलेटर के लिए दे दीजिए, मेरे आईसीयू के लिए दे दीजिए। कम से कम सरकारें नहीं कर पा रही तो हम तो कुछ तो करेंगे। अगर इमरान खान कर सकता है वहां, तो हम हिंदुस्तान में जस्सी भाई क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, शिवानी क्यों नहीं कर सकते, ब्रजेश क्यों नहीं, हम सब मिलके करेंगे। हम लोग एक चौराहे पे जाके गाएंगे और लोगों से कहेंगे कि भाई हमको बैट दे दीजिए, या हमको 15-20 लाख रुपए देते हो, 5 स्टार का सूट देते हो, प्रेसिडेंशियल सूट मत दीजिए, चार्टर मत दीजिए, हम ट्रेन से आ जाएंगे, बस हमको पैसे दे दीजिए ताकि हम हॉस्पिटल बनाए। क्योंकि सरकारें तो नहीं सुन रही है और जनता भी ऐसी अजीब नाकारा है कि फिर इन्हें चुन देती है, फिर इन पर भरोसा कर लेती है। क्योंकि ये हिंदू में, मुसलमान में, इस्लाम में, इस्लाम खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, मंदिर खतरे में है, मस्जिद खतरे में है, ये बेच लेते हैं
और चल जाता है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल पाता हूँ, आज आप दोस्तों के सामने बोल रहा हूँ कि ऐसा एक दानव पैदा करने में मेरा भी योगदान है, तो एक प्रायश्चित मेरे सिर पर भी है। थैंक यू, we get, but thank you for बहुत अच्छी बात की भाई, ये बहुत बढ़िया बात कि what matters is you help people. सुधीर भाई, would you like to make a comment? हाँ, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा कुमार भाई की बातें सुन के। मैंने कुमार भाई का एक दुबई का एक प्रोग्राम सुना था जिसमें पाकिस्तान के एक बड़े युवा कवि आए थे, कवि ही बोलूंगा मैं उनको, तहजीब हाफी जी जी, बताया था कि आपके जितने प्रशंसक हिंदुस्तान में उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में है। और मैंने वो पूरा प्रोग्राम देखा था कुमार भाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटी सी जगह से 10th किया हूँ, सिवान, जहाँ पेड़ के नीचे पढ़ता था, अगर बारिश होती थी तो घर चले जाते थे। 12th किया बांका से, जो अभी अभी डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता हूँ, मुझे हर एक ने डिसमिस किया, मैं कॉलेज टॉप करता हूँ फाइनल ईयर में, IAS का इंटरव्यू देता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। आज 20 साल बाद मैं एक प्रैक्टिस रन कर रहा हूँ, मैं टॉप 2000 प्रोफेशनल टैक्स पेयर में हूँ इस कंट्री के। मैं लंदन में डोर टेनेंट हूँ नंबर 5 बैरिस्टर्स चैम्बर का, जो प्रेस्टीज मानी जाती है, लेकिन मैं डिफीटेड फील कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं उन हर आदमी को कहता था, मैं उस हर आदमी को कहता था मैं इस देश को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं इस देश में विश्वास करता हूं। लेकिन आज अगर आप अखबारों को देखें पिछले 15-20 दिन के, तो चार्टर्ड प्लेन्स की जो कंपनीज हैं उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है। इसमें सुधीर भाई, आई शुड लाइक ऐड वन थिंग, बहुत ही ब्लंट है और हम लोग को शर्म आएगी सुन के। पिछले 30 दिन में 25 दिन में लुटियंस खाली हो गया है। जिन लोगों को इस देश की व्यवस्था चलानी है उन्होंने अपने बच्चे भेज दिए हैं, अपनी बीवियां भेज दी हैं, अपनी डॉटर इन लॉ भेज दी है, अपने बच्चे भेज दिए हैं। कैसे बेशर्म लोग हैं कि हमने टैक्स दिया और आपने अपने बच्चे भेज दिए। और आप चूंकि यहाँ हैं, और ये पॉजिटिविटी की बात है, मैं आपको बताऊं क्या रोके रखेगा हमें। जब हम ब्रजेश को देखते हैं कि वो इतना कुछ छोड़कर, अपने बड़ी बड़ी चीजों को छोड़कर यहाँ बैठता है और उसको आप बेड दिलाते हैं कैलाश हॉस्पिटल में, और उसके बाद उसके वाइफ के लिए हम लोग खड़े होते हैं, उसको बेड मिलता है किसी तरह से, तब हमें लगता है। अनुराग को मैं देखता हूँ कि सुबह से रात तक वो हजारों लोगों से बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तब मुझे लगता है कि हम जाएंगे कहां से इस जगह को छोड़कर। देखिए, हमारी सोसाइटी में पहली बार एक दोगलापन आ गया है, जो दोगलापन 1991 में नहीं था जब हम कॉलेज में थे। हमें बताया गया था हमारा सोना गिरवी है लेकिन हम इस देश को बचा लेंगे। आज हमारे पास सोना भी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, लेकिन पता नहीं किसने हमारे हाथ बांध दिए हैं कि जब अखबारों में यह आता है कि 2 सबसे रिचेस्ट लोग वर्ल्ड के, उनमें हमारे भारत के 2 लोग आते हैं या 3 लोग आते हैं, लेकिन हमारा देश इतना डिमोरलाइज क्यों फील कर रहा है? उसका रीजन है सुधीर भाई, मैं जो समझता हूं, 75 इयर्स में हमने इंडिविजुअल प्रोग्रेस की है, हमने नेशनल कैरेक्टर नहीं बनाया है। आप सिवान से आए हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस है। आप देखिए, मैं जापान गया तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां कुछ अलिखित नियम हैं। जैसे अगर एलिवेटर पर लोग जा रहे हैं तो पूरी की पूरी कतार जो है वो राइट हैंड की तरफ खड़ी हुई है, एक के पीछे एक खड़ा हुआ है, ताकि कोई लेफ्ट से तेजी से जा सके अगर किसी को जल्दी है। वो सरकार ने नियम नहीं बनाया, उस नेशन ने अडॉप्ट किया है। हमने नेशनल कैरेक्टर नहीं बनाया और हमारे हीरोज ठीक डिसाइड नहीं है। जब हमारे पर कुमार, आप ये बात तो मानेंगे कि हमने ताली बजाई, हमने लॉकडाउन माना पिछले बार। उसका रीजन है कि हमने अपने नायक गलत बनाए हैं। हम में से कोई नहीं पूछता कि भारत रत्न लेने के बाद आप एक इन्वर्टर की बैटरी क्यों बेचते हैं। हम में से कोई नहीं पूछता कि 2.5 किलो का हाथ उठेगा तो उठता रह जाएगा, एक आप इलेक्शन जीतने के बाद अब गायब क्यों हो जाते हैं। हम में से कोई नहीं पूछता कि आप सिर्फ अपना ड्रामा करती हैं, अपना नृत्य का कार्यक्रम करती हैं और उसके बाद आप जहां से जीतती हैं वहां आप जाती क्यों नहीं। हम में से कोई नहीं पूछता। हम जैसा आदमी अमेठी में इलेक्शन लड़ता है, ब्रजेश वहां 1 महीने के लिए नौकरी छोड़ के कैंपेन का संभालता है और हम जमानत जब्त करके लौटते हैं। पर कुमार, तो जब तक ये सोसाइटी, जब कुमार आप दिल्ली में रामलीला मैदान में वो लड़ाई लड़ रहे थे, जब व्यवस्था को चेंज करने के लिए आप सुबह से रात तक वहां बैठे रहते थे और आपने इन लोगों को मदद की, और भी ऐसे बहुत लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो हम आज आपके सामने वो बातें बोल रहे हैं जो शायद मैंने भी कभी किसी से नहीं बोली है कि आप बताइए आखिर इस देश का भविष्य क्या है। क्या हमारे देश का भविष्य, पाकिस्तान ये कहता है कि हम आपको ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे, नेपाल ये कहता है मैं अपना बॉर्डर बंद कर रहा हूं, क्या ये हमारे लिए उत्साहवर्धक हो सकता है? बहुत ही शेमफुल है। और हमारे देश का भविष्य एक ही है कि इस देश को अपने रियल कैरेक्टर्स को पहचानना पड़ेगा। देखिए, हमने महाभारत पढ़ी, आपने भी महाभारत पढ़ी। महाभारत का एक कैरेक्टर में बहुत इंप्रेस करता है, कर्ण। हम सबको दुख होता है जब वो मारा जाता है। जब वो रथ का पहिया निकाल रहा था और उसको अर्जुन ने मारा, हम सबको दुख हुआ। मैंने उससे क्या सीखा? मैंने उससे सीखा कि एक दिन मैंने खुद को पाया कि मैं दुर्योधन के रथ पर हूं।
और मैंने दुर्योधन को समझाया कि मैं तेरे रथ पर हूं, और दुर्योधन को लगा कि मैं उसे बचाता रहूंगा। तो मैंने एक दिन तय किया कि धर्म युद्ध में अब हो सकता है दुर्योधन हस्तिनापुर नरेश बन जाए, हो सकता है दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पे कब्जा कर ले, पर मैं उस रथ पर नहीं बैठूंगा चाहे मैं मारा जाऊं, ताकि मैं इतिहास में न लिखा जाऊं। जब तक हमारी हिस्ट्री ऐसे लोगों से सवाल जवाब नहीं करेगी। आप देखिए ना, जिस जगह से शिवानी जिस जगह से हैं, बॉम्बे से जहां ये काम करती हैं, जस्सी पाजी जहां काम करते हैं, मैं भी कुछ जगह कुछ प्रोग्राम्स के लिए वहां जाता हूं, या हमारी जो क्रिकेट की फेटर्निटी है, बाकी फेटर्निटी है, उसने लीडर्स किस तरह के बनाए हैं, कैसे हमारे देश के नायक हैं, और हमारी पॉलिटिक्स में भी कैसे नायक हैं। ये देश वो है सुधीर भाई, जिसने राम पर भी प्रश्न किया है, जिसने कृष्ण पर भी प्रश्न किया है, जिसने शंकर भी प्रश्न किया है। ये नई हमारी मनुष्यता क्या पैदा हुई है कि हम लोगों को प्रश्नों के घेरे से बाहर खड़ा कर। तो कुमार, आप ये बताएं, जब यूपी के हजारों जो बच्चे अभी इस समय अपने माता पिता को दोनों को खो चुके हैं, और ये वो मिडिल क्लास के और लोअर क्लासेस के बच्चे हैं जिनको नहीं पता उनका क्या होने वाला है, और आपके पास एक सिल्वर लाइन है जिसको शायद हम लोग देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि जुडिशरी पर बड़े प्रश्न चिन्ह हो रहे थे 4-6 महीने पहले तक कि जुडिशरी भी बिल्कुल डोरमेंट हो गई है। आज आप देखें, ये पूरा जो दिल्ली की लड़ाई लड़ी गई, ऑक्सीजन कम से कम वहां के हॉस्पिटल्स में आया, जुडिशरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वो ऑलरेडी थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों के एग्जांपल्स जो हम लोग के पास आ रहे हैं, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हम आपको देख रहे हैं कि आप कितने सारे विलेजेस को इस तरह अडॉप्ट कर रहे हैं। और मैं आपको ये प्रॉमिस भी करना चाहता हूं, अनुराग, अगर आप परमिट करें, कि मैं ब्रजेश को कह भी चुका था कि मैं अपने तरफ से 50,000 का कल चेक भेज रहा हूं आपके लिए, कि आप उसको एक विलेज में कहीं भी उसको यूज करें। मैं और भी लोगों को जोड़ूंगा जो इससे जुड़ेंगे। दिस इज व्हाट आई कैन प्रॉमिस, एंड आई वांटेड टू से इट्स अ पॉजिटिव स्टेप वी आर गोइंग टू टेक। देखिए, हाँ, हम इसमें सुधीर क्या कर रहे हैं, हमने पहले दिन से काम ये किया, जब हमने गांव में काम शुरू किया, हमको पता था कि ये देश जो है वो सवाल उठाने वालों का। जैसे परसों मेरी जो टीम थी वो बड़ी डिमोरलाइज थी, तो उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे, बहुत सारे नंबर में स्क्रीनशॉट्स थे, और जिनमें लिखा हुआ था कि ये 150 गांव ही क्यों कर रहे हो, बाकी गांव किसके लिए मरने छोड़ दिया, फोटो अपना क्यों चिपका रहे हो, और इसको फेसबुक पे क्यों डालते हो, अगर कर रहे हो तो ये पैसा कहां से आ रहा है। एक बात याद दिलाऊंगा, आपने पूर्णिया का एक एग्जांपल अपने ट्विटर पर डाला था, वो बहुत सही एग्जांपल आपने डाला था, और मैं आपको उसके लिए साधुवाद देता हूं कि आप में वो हिम्मत थी कि आपने डाला कि अगर मैं किसी की मदद बिहार में नहीं कर पा रहा हूं, तो आपने कहा कि क्या मैं वहां का लोकल एमपी हूं कि आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो आपको अब्यूज करें। ये भी हमारी सोसाइटी का दोगलापन है। नहीं तो मैंने उसको ये नहीं कहा मैं एमपी, उसने मुझे कहा कि तुम पूर्णिया में मदद नहीं कर रहे हो, हम लोग यहाँ, हमें अस्पताल चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे 2 बार वहां से सांसद बनाया, फिर भी मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो हमने ये किया है कि हमारा जो पर्सनल मेरा ट्रस्ट था, मैंने अपने ऑफिस को कहा कि पूरे कोविड पीरियड में इसमें से पैसे बाहर जाने चाहिए, इसमें अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये देश बहुत अजीब है। फिर आप कहेंगे कि मदद कैसे हो रही है, तो जैसे सुधीर ने कहा कि मैं ये सम ऑफ अमाउंट देना चाहता हूँ, ये चीज देना चाहता हूँ, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई एक कोविड केयर किट जो है, जिसमें 10 दिन का एम्स का प्रिस्क्रिप्शन है, जिसमें N95 मास्क है 4, जिसमें सैनिटाइजर है, बीटाडिन के गार्गल की एक बोतल है, जिसमें एक ऑक्सीमीटर है, एक थर्मामीटर है, ये 500-600 रुपए का बनेगा। तो आप इस वेंडर को या अपने किसी वेंडर से हमें ये किट भिजवा दीजिए, और इस किट को हम गांव में भिजवा देंगे। और आप यकीन मानेंगे कि पिछले 180 के आसपास जो आज गांव हुए हैं, और मैं आशा करता हूं कि अगले 5-10 दिन में ये लगभग 400-500 पहुंच जाएगा। ये सब इसी मॉडल पर चल रहा है। देश भर से, दुनिया भर से लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि एक ना एक दिन हमारी, देखो, डेमोक्रेसी का रिफॉर्म केवल डेमोक्रेसी है, करेक्ट, डेमोक्रेसी का उपचार केवल डेमोक्रेसी, उसे और मजबूत करिए, और क्वेश्चन के लिए करिए। मुझको भी बहुत लोगों ने कहा कि मत बोलिए, घर वालों ने कहा, परिचितों ने कहा, कुछ ने प्यार से कहा, कुछ ने गुस्से से कहा, कुछ ने धमका के कहा, कुछ ने ट्रोल करके कहा, कुछ ने चरित्र हनन करके कहा कि मत बोलिए। लेकिन मैंने एक लाइन कही थी उस वक्त अपनी कविता में कि स्वर लय ताल छीन लो चाहे, स्वर लय ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। मुझे और सुधीर आपको सोसाइटी ने क्या नहीं दिया, जस्सी को और हमको और ब्रजेश को क्या नहीं दिया सोसाइटी ने। हमको बड़ी गाड़ियां दी हैं, बड़े मकान दिए हैं, यूरोप के टूर दिए हैं, अच्छे बैंक बैलेंस दिए हैं, अच्छे रिश्ते दिए हैं, अच्छे दोस्त दिए हैं। और मैं जिस फ्रेटर्निटी से आता हूँ, पोइट्री से, वहां उन लोगों ने सच बोला है जिनके पास शाम के खाने का जुगाड़ नहीं था। नागार्जुन ने, निराला ने, ऐसे लोगों ने, जस्सी भाई जानते हैं कि इनके भी ऐसे लोग हैं, ऐसे गायक रहे, ऐसे कहने वाले रहे। ये तो पंजाब से आते हैं
जहां ऐसे ऐसे महान लोग पैदा हुए जिन्होंने अपना पूरा वंश ही दान कर दिया धर्म के लिए, जाति के लिए, मानवता के लिए। अपने पूज्य पिताजी को कह दिया कि आपसे बड़ा बलिदानी कौन होगा, अगर आप बलिदान दे देंगे तो ये धर्मांतरण रुक जाएगा। और नवम गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दान दे दिया। उसके बाद दशमेश पिता ने भी अपना बलिदान दे दिया, उनके अगले बच्चों ने भी बलिदान दे दिया। तो मेरा कहना यह है, अल्टीमेटली सोसाइटी इस बात को पहचानेगी और धीमे धीमे सोसाइटी एजुकेट होगी, ग्रेजुएट होगी, और वन फाइन डे हम रहे ना रहे, थोड़ा सा इस स्पिन को घुमाने में, इस व्हील को घुमाने में हमारा योगदान होगा। आप मानिए मत मानिए, 3 साल पहले जब मैंने एक हीरो के बारे में ये बोल दिया था एक शो में, मुझको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। आज पहली बार कन्फेस कर, वो हीरो साहब जो थे वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के पास थे और वो हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते थे, देशभक्ति सिखाते थे। इस वाली मिट्टी से बनी हुई ये टाइल खरीदो और भारत की मिट्टी, और उनके पास जो नागरिकता थी वो विदेश की थी। मैंने ये बोल दिया कि यार आपका सिटीजनशिप तो दूसरे देश की और आप ज्ञान हमको दे रहे हो, लगातार बोल दिया। वो ऐसे प्रेशर में आए कि आज वो इंडियन सिटीजन हैं। और जस्ती जानते हैं, कैलेगरी के जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो बाद में आज कैबिनेट में भी हैं, जैसन केनी, जब मैं कनाडा में था तो जैसन केनी ने मुझे ऑनररी सिटीजनशिप दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आपके नाम पर कनाडा में इतनी भीड़ आती है, इतने लोग आते हैं और हम चाहते हैं लिटरेचर अच्छा हो, आप यहाँ की वो ले लीजिए, नागरिकता ले लीजिए। मैंने उनसे कहा कि बहुत आभार आपका, लेकिन मैं जिस देश में पैदा हुआ हूँ, जितने भी जन्म होते हैं वहीं पैदा होना चाहता हूँ। पर आप ये फील करते हैं, कुमार आपको फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक बात जो रीजन है डॉक्टर बत्रा इसको कर भी रहे हैं पॉजिटिविटी डायलॉग को, कि सोसाइटी में इतने नगीने भी आपको मिलते हैं। जब आप देखते हैं कि बिहार से एक बंदा गाड़ी में बैठ के ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपने नोएडा में दोस्त को बचाने के लिए चला आता है, और लोग रात रात भर जगते, इस सोसाइटी में इतनी ताकत है। अगर ये सोसाइटी आज इस तरह से यूनिफायर का काम करे, एम्पलीफाई कर पाए इस चीज को, तो इसका भी मैं अपने खेत में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरा फार्म हाउस है, मैं उसमें वहां रहता हूँ, मेरे फादर के पास रहता हूँ। मतलब मेरे फादर मेरे पास क्या रहते हैं, मैं फादर के पास रहता हूँ। तो हम लोग पिछले 1 महीने से यहीं बंद हैं, यहीं उगा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं। आदमियत जो है वो मिट्टी जैसी है, जो आप सीड करोगे वो मिलेगा। अगर ब्रजेश को सहायता मिली तो इसलिए नहीं कि ब्रजेश हमारा छोटा भाई है, आपका छोटा भाई है। ब्रजेश को सहायता इसलिए मिली है क्योंकि ब्रजेश अपने माता पिता के साथ रहता है। ब्रजेश अपनी बहन की बेटी को अपने पास रख के पढ़ाता है और उसकी नौकरी की चिंता करता है। तो जो उसने अपनी जीवन में सीड किया है, उसका पौधा उसको, मुझे नहीं पता था कि उसकी तबीयत खराब है। आई वॉज टोल्ड बाई समवन, मुझे नहीं पता था ब्रजेश की तबीयत खराब है, उसने मुझे नहीं बताया था। एंड आज वो ठीक हो गया है। मैं आज कह रहा हूं, मैं उससे तो कहता रहा कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन जब मुझे डॉक्टर महेश ने बात की, मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत अंदर से बेचैन था। और आई टॉक टू डॉक्टर गुलेरिया, आई सेड कि मुझे आपकी जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा नहीं, मैं बता दूंगा आपको। आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर एम्स आल्सो, आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। टचवुड वो ठीक हो के वापस लौट के आया, उसकी हिम्मत थी, चारों ओर वापस आए। तो आप जो बोते हैं वो काटते हैं। अगर आपने अच्छाई बोई है तो आप अच्छाई काटेंगे, आपने बुराई बोई है तो आप बुराई काटेंगे। इसी दिल्ली के लाल किले के सामने से गुजरते हो आप देखिए, जिन बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए मजदूरों की जिंदगी तबाह कर दी गई, उनमें पीपल फोड़ के निकल आया है। ये जो खुद को खुदा समझते हैं इस वक्त के, ये सब खुदा नेस्तनाबूद होंगे, ये सब मिट्टी में दिखाई देंगे। कुमार विश्वास जी, आपने अपने दिल से बोला जो भी, और अनुभव मैं मानता हूँ कि जो आप बीजोगे वो इसी जीवन में पाओगे। मैं हिंदू हूँ and I believe in reincarnation, but I want to bring in Shivani into the conversation. Shivani, you heard your friend Jesse, you heard Dr. Kumar Vishwas. Why don't you share, एक कहावत है जब कुमार विश्वास जी ने शुरू किया, we tend to forget history very fast. We resort back to our own old ways. अभी तो कोरोना ताजा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सब ने बहुत पेन देखा है, मिजरी देखा है, लॉस देखा है दोस्तों का, फैमिलीज में। तो अभी हम मानवीय हैं। क्या is there a danger that we'll go back to our old selves, or do you think the last 6 weeks have been so traumatic that there is no looking back? You're absolutely correct. The last 6 weeks have been so traumatic. They are a warning. They are an eye opener. और अभी भी हम नहीं जागेंगे तो हमारा फिर कुछ नहीं हो सकता। So I think इस डिस्कशन मैंने बहुत ध्यान से सुना सबको, मुझे बहुत insights मिले। In fact, I enjoyed listening to Kumar Vishwas ji. My God, he's absolutely like an encyclopedia of knowledge and so
so literate in every aspect. Sudhir ji is he's a revolutionary, and I was with him when he was doing that surrender the cylinder. मतलब we were in touch with each other about that. तो मुझे पता है कि सब लोग बहुत ही पैशन से ये काम कर रहे हैं, बट बात ये आती है कि somewhere I think collectively we were all to blame for letting our guards down and therefore succumbing to this situation. So I think this being a very huge eye opener and a huge warning for us. इसके बाद we must all strive कि भाई ये third wave ना आए, और अगर आती भी है तो it should हमारा कुछ ना बिगाड़ सके. We should be so well prepared. We should be so pre-warned and forewarned and all of that all of us collectively must do something, and we cannot let our guards down or stop wearing our masks just because the cases go down or whatever. So no, I'm not just talking in terms of that, but in terms of going back. जैसे कुमार विश्वास जी ने हिंदी में कहा कि हम अपने समझें कि हिंदुस्तान की सोच क्या है, what is our national character, what are we known for, what are our heroes known for, right? And certain kind of politician or political leaders will attract certain kind of other leaders. So in our DNA, shall we become more selfless? Shall we become more community oriented? Shall we become more charity, philanthropy oriented? Shall we? Yeah. Absolutely. Philanthropy is the key word here. Philanthropy is a key word here, Dr. Batra, because in these times, I have seen so many of my neighborhood people, my friends and charities and things who've done so much for each other. Like the Sikh community has done so much. They've been so proactive कि उन्होंने अपने गुरुद्वारों को COVID healing center बना दिया. There is a जंगपुरा के neighborhood में मेरे friend ने बहुत बढ़िया एक एम्बुलेंस सेवा, लंगर सेवा, ऑक्सीजन रिफिलिंग सेवा शुरू की थी. There is another wonderful organization जो आजकल जो migrant workers and their families who don't have not even one meal a day, उनको वो राशन provide करते हैं. I've become their cause ambassador. That's how I know about it. So I think we as civilians have really risen to the occasion. So I don't know how much I should look up to our leaders, but I think I look up to my fellow citizens, जो हमारी जनता है, और जो कुमार विश्वास जी कह रहे थे ना, जो नगीने हैं, हम नगीनों को देखते हैं ना, उनकी इंस्पिरेशन लेते हैं. लेट्स नॉट लुक एट वो जो 5 लोगों ने जिन्होंने फ्रॉड किया इंजेक्शन का, या वो उन 5-6 हॉस्पिटल, जिन लोगों ने इतने अच्छे काम करे हैं और कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं. फाइंड अ बेड ऑर्गेनाइजेशन, यू नेम इट. सुधीर जी, surrender the cylinder, then he went to he fought the case so that we got oxygen in our city. So let's all be one, let's be united, और साथ में काम करते हैं ना, साथ में मिलकर we can कहते हैं कि ना, इसको हम झेल लेंगे, हम इसको we will win over corona. Thank you so much. I think we are already about 10 minutes above time. Let me ask for closing comments. Brajesh ji first, George, and then we'll go to Sudhir ji, Kumar Vishwas ji, Shibani and Jassi. अनुराग जी, 2-3 चीजें हैं. What Kumar Bhaiya has said is very right. Political leaders are not our leaders. Our leaders are people who are working on the ground. They are the role model. They should be encouraged. In whatever way you, me and everyone can contribute in terms of keeping their faith, keeping them motivated, keeping the machinery moving, is what our role is today. And when you say positive dialogues, I think my submission would be to take it from here and say how each of us is going to contribute, play our role, keep our surroundings more positive, and not let the other influence, hamper our objectives. The initiative Dr. Vishwas has already taken in terms of reaching out to villages, help people spread awareness about the COVID, distribution of basic medicine, and enabling the basic fundamental facilities, so that the last lag between the challenge and them reaching out to hospitals can be mitigated, because that is what the more critical. And if our last issue of Business World is how to ramp up the healthcare infrastructure, we talked about the public. So clearly, if somebody like Dr. Kumar Vishwas is thinking of putting up his energies and focus in building healthcare infrastructure, that the large corporates of India, the healthcare entrepreneurs,
clearly have to think even bigger to be able to meet the challenges of future and the needs of future. Mr. Sudhir Mishra, your closing comments. So I'll say that I will certainly, to start with, I'll assist Kumar Bhai. I will contribute myself so that I can inspire others also. Because first you have to contribute yourself. That's my feeling. The second thing is that I want to tell Dr. Batra that when this all started 45 days back, I was also very myopic about it. I used to think, okay, we will help somebody if need is there. But somebody opened my eyes. Somebody told me, no, you have to help everybody. And once we started helping everybody, Dr. Batra, you know that till 1 o'clock or 2 o'clock, we are just arranging beds and oxygen cylinders till, I think in first week, till first week of May, it was the life. 18 hours to 20 hours just managing oxygen cylinders. Even in my vehicle, they were going here and there. So I think it's a proud moment. Also, you should seize it as an opportunity that you had been chosen by God to do something so spectacular. It is not all adversity when you get up in the morning and you thank God that you got another day to contribute something substantial. Thank you so much. Shibani, your final words. I'll close it with a few lines from the legendary Michael Jackson's Heal the World, because I believe that music has a very healing power, and I make this plea to the universe. There's a place in your heart, and I know that it is love. There's a place that is brighter than tomorrow. There are ways to get there, but if you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, and if you care enough for the living, make a better place for you and for me. So let's make it a better place for all of us. And Dr. Kumar Vishwas, हमने आपके साथ शुरुआत की थी और आपके साथ हम इसका जी डॉक्टर साहब, मेरा मनुष्यता में और भरोसा बढ़ गया है। मैं पहले से ह्यूमैनिटी में बहुत भरोसा करता था, मेरा बहुत मनुष्यता में भरोसा बढ़ गया है। व्यवस्था से मेरा मोह भंग पहले से भी था, थोड़ा और हो गया है। तो हाँ, दोनों ही बातें। और मुझे लगता है कि जो टैक्स हम पर थोपा जाता है वो तो हमें देना ही है, उसमें तो क्या करें। लेकिन मैंने सरकारों को जो पीएम केयर में पैसे वैसे दिए शुरू में लाखों रुपए, मुझे लगता है वो भी मुझे बाकी लोगों में बांट देने चाहिए थे, इन गाँव में बांट देने चाहिए थे। और मेरा दुआओं और बद्दुआओं दोनों में भरोसा बढ़ गया है। मुझे लगता है कि ये वक्त दुआएं कमाने का है और ये जिंदगी में आपके कभी न कभी काम आएंगे। और क्योंकि आप कवि हैं, मैं चाहूंगा एक आखिरी कविता आप हम सबको और दर्शकों को समर्पण करें। और देखिए, बहुत सारे लोग मैंने देखे कि जो जिनकी रिपोर्ट्स बहुत खराब थी वो बच के आए, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनको बहुत ही सामान्य फ्लक्चुएशन था एसओपी में, उनको हम नहीं बचा पाए। तो मुझे ऐसा लगा कि दुआओं का बहुत असर होता है और अंदर के सोल का भी असर होता है। तो मैं 4 लाइनें आपको बिना गाए सुना देता हूँ कि अगर दिल ही मुअज्जन हो, मुअज्जन जो अजान देता है, अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती हैं, समंदर में सभी माफिक हवाएं काम आती हैं, हमें आराम है ये दोस्तों की मेहरबानी है, दुआएं साथ हो तो सब दवाएं काम आती। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया आपका। और भगवान करे कि हम हिंदुस्तानियों के साथ दुआ भी हो और दवा भी हो, दोनों चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अभी भी मानता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उसमें वो अपनी सर्वाइवल के लिए, इफ नॉट एनीथिंग एल्स, दे विल डू बेटर। आई नो कि और मुद्दे हैं जिनसे इलेक्शन जीते जा सकते हैं, अपने उनकी बात की, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनमें अभी भी कहीं ना कहीं तो कुछ बचा होगा। ऐसी मेरी आशा है कि वो ईश्वर उनको इतनी ऊर्जा दे और उनको सुबुद्धि दे। मैं आपको एक छोटी बात कहना चाहूंगा कि जब मैं 12 साल का था और मेरी बड़ी बहन 16 साल, 4.5 साल बड़ी है, तो मेरी मदर वो स्कूल टीचर थी, स्कूल प्रिंसिपल बनी, और वो हम दोनों को बोलती थी कि भगवान को सवेरे सवेरे शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे आँख ठीक है, कान ठीक है, से थैंक यू टू गॉड। मैं अपनी बड़ी बहन को दिखता था कि मम्मा रोज क्या बोलती है कि भगवान को थैंक यू बोलो यार, ठीक तो है कान, और बोलती थी कि सुबुद्धि, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आपको सुबुद्धि दे। मैं सोचता था यार, मैं अपनी बहन को बोलता था क्या यार मम्मी रोज बोलती है, रोज बोलो यार क्या है।
तो अब मैं कह सकता हूँ कि पिछले 10-15 साल से मुझे समझ आता है, और पिछले 6 हफ्ते में तो बहुत ज्यादा समझ आता है। बहुत ज्यादा, दोनों बहुत बातें बहुत ऐसी बातें बोलती है मेरी माँ, जो एक तो सुबुद्धि दे कि आप अच्छे कर्म करें, और दूसरा कि आप ईश्वर का रोज धन्यवाद दें, अपने दोस्तों का धन्यवाद दें जो आपके, क्योंकि ईश्वर तो है ही और उसका हमें आभास होता है, बट जो दुनिया में लोग आते हैं और आपको एक प्रोत्साहन देते हैं या मदद देते हैं, वो भी ईश्वर का एक रूप है, स्वरूप है। निश्चित बात। Thank you so much for all you've done, and we wish you luck on your journey. Stay safe, stay healthy, keep helping people, spread the positivity. So thank you, Mr. Brajesh Singh. Thank you, Dr. Shri Sudhir Mishra. Thank you, Ms. Shibani Kashyap. Thank you, Dr. Kumar Vishwas. And thank you, my colleague, Mr. Ruhail Amin, who's joined us from Kashmir. Thank you so much. And we look forward to another BW Positive Dialogue next Friday. Thank you so much.